Hello everybody, I am Abhishek Kumar Bharti and today in this video we are going to see the different keys we are having in database. So firstly, when we are learning database we get to know about different keys like what are super key, composite key, primary key, alternate key and many more keys. So we get confused what all these are and what are the use of these keys. So in this video we are going to understand each and every keys that we are in database. First of all, let's quickly see what actually is key. तो की एक्चुअली एक एट्रीब्यूट या एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो किसी भी डेटाबेस में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अगर एक एट्रीब्यूट है किसी डेटाबेस का तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सब यूनिकली डिफाइन कर रहा है एक रो को. तो ये एक की हुआ. इसका काम क्या है? पहला तो रो को यूनिकली डिफाइन करता है. दूसरा, ये सर्च करने में हमें हेल्प करता है कोई भी डेटा को डेटाबेस में. हमें दूसरे डेटाबेस से कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है. So we have learned about different keys that we are having in database. Now we see what are different types of keys. We just check there are super keys, candidate key, primary key, alternate key, foreign key and composite key. Now let's talk about super key. The first key, super key. So super key actually is a combination of all the different keys. It's a superset of all the keys that uniquely defines our row in a table. So let's see with the example what it is. So here I am having a table and let me just point it. This is a table and we are having some attributes like serial number, employee ID, name, email, department ID and address. For that, if I want to uniquely identify a record in a table, then what should I do? I will create a key. So here we can say that there is serial number, email, employee ID. By these we can easily identify a record in a table, but with the help of like serial key, employee ID, department ID, serial number, name, department ID, email, name and department ID, email ID, name and many more things. With the help of these we can easily identify a record in a also in a table. There can be many super keys, like for example in this table we can see that we have written 10 super key by ourselves, but there can be many more super keys in this table. So now let's see candidate key. कैंडिडेट की एक्चुअली जो हमारा सुपर सेट है उसका मिनिमम सुपर की होता है, यानी सबसे छोटा सुपर की जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करे एक रिकॉर्ड को उस टेबल में, उसे हम लोग सुपर की कहते हैं. कैंडिडेट की एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकता है. अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखें तो अब इस टेबल में there is, where is my pen, okay, there is serial number, where is candidate, okay. अगर हम लोग इस टेबल में देखें तो there is serial number, employee ID, name, email, department ID and address, and here we have written its candidate key. So how do we get this candidate key? If I see the previous slide that was about super key, here you can see there are the different keys that we are having. अगर इसमें से हम लोग निकालें, ये सबसे छोटा है, एक की है जो यूनिकली डिफाइन कर रहा है, एक ईमेल आईडी है की है जो यूनिकली डिफाइन कर रहा है, एक एम्प्लॉय आईडी है की है जो यूनिकली डिफाइन कर रहा है इस रिकॉर्ड को टेबल में. अगर हम लोग इस सब वाले के बारे में बात करें, इस वाले के बारे में बात करें, सो इसमें एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी, हाँ ये यूनिकली डिफाइन कर रहा है. लेकिन अगर हम सिर्फ अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का यूज करें तो भी ये यूनिकली डिफाइन करेगा इस रिकॉर्ड को, तो ये हमारा कैंडिडेट की नहीं हुआ. अगर ये लें सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, ये भी यूनिकली तो इस टेबल को डिफाइन कर रहा है. लेकिन अगर हम लोग सिर्फ सीरियल नंबर लें तब भी ये इस
पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा सुपर की नहीं हुआ। सुपर की कैंडिडेट की नहीं हुआ। कैंडिडेट की एक्चुअली सुपर की का सबसे स्मॉलेस्ट की होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, बट इन सब में अगर देखें तो कोई ना कोई एक ऐसा की है जो इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो ये तीनों है। जो सबसे छोटा है ये तीनों, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है दिस वन एंड दिस वन। सो ये हमारे इस टेबल का कैंडिडेट की हुआ, विच इज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, सीरियल नंबर, ईमेल आईडी एंड एम्प्लॉयमेंट आईडी, ये सारे इस टेबल के कैंडिडेट की हुए। अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी की क्या होता है, फिर इसे हम लोग बाद में देखेंगे। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की जो हमारा कैंडिडेट की हुआ, उस कैंडिडेट की में से हम लोग एक एट्रीब्यूट चूज करते हैं जो पूरे टेबल को यूनिकली पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है और ये सिंगल रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। और अगर हम लोग कभी प्राइमरी की सेट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग विदाउट वैल्यू नहीं डाल सकते, उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकता है। देयर मस्ट बी हैविंग सम वैल्यू एंड इट शुड बी यूनिक वैल्यू। ना अगर से हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पे दे सकते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट की था, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ये हमारा कैंडिडेट की था। इसमें से हम लोग एक की को चुने, दैट इज एम्प्लॉयमेंट आईडी। तो ये हमारा अगर हम लोग प्राइमरी की सेट कर दिए हैं तो बाकी जो सारे की बचे उसे हम लोग अल्टरनेट की करते हैं। अगर इसको हम लोग डिटेल में समझें, अगर डिफिनीशन देखें अल्टरनेट की का, तो जो हमारा कैंडिडेट की हुआ उसमें से हमने एक तो प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, तो जो बाकी बचे उसमें की वो सारे हमारे अल्टरनेट की में आते हैं। तो इससे ये हो गया कि मतलब अब कैंडिडेट की तो बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए एक टेबल में 5 की है, उसमें से हमने एक प्राइमरी की सेलेक्ट किया, तो बाकी जो 4 बचे वो सारे अल्टरनेट की हो जाएंगे। एक टेबल में एक से ज्यादा अल्टरनेट की हो सकता है, और ये भी इसमें एक भी नल वैल्यू नहीं हो सकता। इफ आई जस्ट सी, तो ये जो हमारा बच गया था इस 3 में से एक तो हमने प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया था, तो ये जो हमारा सीरियल नंबर बचा और डिपार्टमेंट आईडी बचा, ये हमारा अल्टरनेट की हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरेन की। तो डेफिनेशन कहता है ये कि फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है हमारे टेबल का जो दूसरे टेबल का प्राइमरी की होता है। ये हमें 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमारा एक टेबल है, टेबल 1, टेबल 2। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि टेबल 2 का प्राइमरी की जो है ये डिपार्टमेंट आईडी है, जो हमारे टेबल ए का एक एट्रीब्यूट है। ये क्या कर रहा है, टेबल 1 का जो ये डिपार्टमेंट आईडी जो एट्रीब्यूट है, ये हमारे दूसरे टेबल का प्राइमरी की है, जिसके थ्रू हमने इस दोनों के टेबल के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड किया। तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट आईडी है जिसके थ्रू हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया, वो हमारा फॉरेन की हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है कि दिस इज फॉरेन की। सो हमने देखा अभी तक कि सुपर की क्या था, सारे की का कॉम्बिनेशन जब हम लोग लिया तो वो सुपर की बना, और उस सुपर की में से जब हमने मिनिमम सेलेक्ट किया तो वो बना हमारा कैंडिडेट की, और उस कैंडिडेट की में से जब हमने एक को हटा लिया उसे हमने बोला प्राइमरी की, जो बाकी बचा उसे हमने बोला अल्टरनेट की। एंड अब फॉरेन की ये हुआ कि जो हमारा एट्रीब्यूट दूसरे टेबल का प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है उसे हमने कहा फॉरेन की। एंड एक टेबल में जो फॉरेन की होता है वो हमें दूसरे टेबल से क्रॉस रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करता है, और ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी हेल्प करता है बिल्ड करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपोजिट की। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जब कोई टेबल रहता है तो हम उसमें से एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं जो उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे।
तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज करते हैं जो यूनिकली फिर कंबाइन होके उस टेबल के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। उस केस में हम लोग यूज करते हैं कंपोजिट की। तो कंपोजिट की क्या है, अगर हम लोग एग्जांपल से देखें तो इस टेबल में देयर इज कस्टमर आईडी, वेयर इज माय पेन, ओके, सो हियर इज कस्टमर आईडी, here is customer ID, बट एक टेबल में हो सकता है कि सेम कस्टमर ने सिलेक्ट की प्लेस किया हो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं एट्रीब्यूट जो इस पूरे रिकॉर्ड को, इस टेबल में पूरे रिकॉर्ड को अलग अलग आइडेंटिफाई करे। तो इस केस में हमें एक ऐसा की बनाना पड़ता है, 2 या 3 एट्रीब्यूट को मिला करके, या डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कैसा है, जो इस पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो उस केस में हम उसे बोलते हैं कंपोजिट की। अगर हम लोग यहाँ एग्जांपल देखें, अगर हम यहाँ पे कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों को मिला दें तो ये एक की बन जाएगा जो अब इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कंपोजिट की। सो अगर हम लोग क्विकली अगर पूरे चीज को समराइज करें तो सबसे पहले आता है सुपर की। सुपर की में वो सारे की पॉसिबल की का कॉम्बिनेशन होता है सुपर की, सुपर सेट, इट्स द सुपर सेट ऑफ ऑल द की दैट आर प्रेजेंट। सुपर की में से अगर जो सबसे मिनिमम की बनेगा, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसे हम लोग कहेंगे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में से एक को हम लोग प्राइमरी की सिलेक्ट करते, बाकी जितना बचेगा वो सारा हमारा ऑल्टरनेट की होगा। और फॉरेन की वो होगा जो हमें एक ऐसा एट्रीब्यूट जो दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा होगा। और फॉरेन की हमारा वो होगा जो एट्रीब्यूट दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा होगा। और हमारा कंपोजिट की क्या होगा, इन केस अगर उस टेबल में कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो उस पूरे रिकॉर्ड को, अलग अलग रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 या 3 एट्रीब्यूट को मिला के एक प्राइमरी की बनाते हैं, उसे हम लोग कंपोजिट की करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट कीज इन डेटाबेस। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।